Hello everyone and welcome back. How are you all? I hope you all are fine and safe. Today we are going to start our next chapter, chapter 3, that is from tasting to digesting. In this, we will get to know about the taste and the digestion. And the objectives of this chapters are: first one, identify the food by taste and smell. Second, identify and mark the areas of taste such as sweet, sour, bitter, and salty. Third one, to know what happens to the food we eat. Fourth one, to understand about the digestive system. Now, let's start the chapter with a story that is different tastes. This story is of three people, that is Jhumpa, Jhulan, and their mother. So let's begin. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter Karela, that is bitter gourd." Jhumpa, she is a girl, and she ran into the kitchen and hold her mother tightly and said that, "Ma, I am not going to eat this bitter Karela. मैं इस कड़वे करेले को नहीं खाऊंगी. Give me some good and roti." So Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Jhumpa क्या कहती है? I want some jaggery and roti. I will not eat this bitter करेला. मैं ये करेला नहीं खाऊंगी. मुझे क्या दे दो? गुड़ और रोटी दे दो. So Ma smiled and she said, "You eat roti and sugar in the morning." तुमने मॉर्निंग में ही गुड़ और शुगर और रोटी खाई है. So her sister Jhulan teased Jhumpa, "Don't you get bored of only one kind of taste?" तो झूलन जो उसके सिस्टर है, शी सेड टू झुम्पा दैट कि क्या तुम एक ही खाना खाकर बोर नहीं होती? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, "डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली टर्मराइंड?" तो झुम्पा कहती है, क्या तुम एक ही इमली को बार बार चखते हुए तुम बोर नहीं होती? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. और मैं शर्त लगाती हूँ कि इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आने लग गया है. श्योर आई लव सार इमली. तो झूलन सेड, "Yes, sure, I love sour imli, but still I'll eat a sweet and salty things too." मुझे इमली खाना बहुत पसंद है, बट उसके साथ साथ मैं स्वीट और सॉल्टी भी खाती हूँ. I even eat करेला, said झूलन and looked at her mother. वो क्या कहती है कि मैं करेला भी खाती हूँ, और ऐसा कहते हुए वो अपनी मदर को देखती है. एंड दे बोथ लाफ्ड हार्डली, और दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं. झूलन सेड टू झुम्पा, "लेट्स प्ले अ गेम. यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़." झूलन झुम्पा से कहती है, "लेट्स प्ले अ गेम. वी विल प्ले अ गेम टुगेदर. हाउ वी विल प्ले अ गेम? I'll close your eyes and you will open your mouth and I'll put something in your mouth, and with that thing you will tell us that what it is." हम जो भी तुम्हारे मुंह में डालेंगे तुम उसे बताते जाना कि हम क्या खिला रहे हैं. Chulan took a few drops of lemon in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. Firstly, what she said, झूलन ने क्या करा? लेमन की कुछ जूस निकाला और उसे स्पून में डालकर उसके मुंह में डाल दिया. तो जैसे ही उसके मुंह में डाला, व्हाट शी सेड, "सार लेमन." झुम्पा रिप्लाइड क्विकली. तो जैसे ही उसके मुंह में डाला तो झुम्पा ने एकदम रिप्लाई किया कि ये तो क्या है, खट्टा नींबू है.
Julan then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested crushed it, otherwise she will know what it is. पहली चीज़ उसने क्या डाली? लेमन जूस. नाउ सेकेंड थिंग वो क्या डालना चाहती है? जैगरी. बट her mother suggested to crush the jaggery, otherwise she will get to know what she is eating. उसकी मदर ने क्या बोला कि इस जैगरी को क्या करो? क्रश कर लो, अदरवाइज वो एकदम से ही गेस कर लेगी कि आप उसे क्या खिला रहे हो. So Jhulan crushed the jaggery, but Jhumpa easily guessed it. Jhulan did the same thing. झूलन ने वही चीज़ करी, उसे क्रश किया जैगरी को, एंड शी पुट इट हर इन हर माउथ. उसके मुंह में डाल दिया. जैसे ही झूलन ने झुम्पा के मुंह पे डाला, झुम्पा इमीडिएटली गेस्ड इट व्हाट इट इज़. क्या करा? झुम्पा ने अचानक से बता दिया कि उसके मुंह में क्या डाला है. They played the game with different food items. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही उसके मुंह पे डालते गए. एंड शी टेल देम दैट व्हाट शी इज़ ईटिंग. एंड उसके साथ साथ जैसे ही झुम्पा को मतलब उसके सामने फ़िश लेकर आए, फ्राइड फिश लेकर आए, तो उसे बिना उसके मुंह पे डाले ही शी टोल्ड देम दैट व्हाट शी इज़ ईटिंग. बिना खाए भी उसने बताया कि वो उसके सामने क्या लाया जा रहा है. हाउ शी टोल्ड अस? with the smell. You know, first chapter is super senses. I told you how many senses we are. तो उन senses में से एक sense कौन सा होता है? स्मेलिंग का भी होता है, यानी कि स्मेल करना. So with the help of a smell, Jhumpa told them that what they are bringing. Now Jhumpa could tell fried fish even before tasting it. Jhulan said, now close your nose and tell me what this is. अब क्या हुआ? जैसे ही उसके पास फ्राइड फिश लेकर आए, शी विल गेट टू नो दैट व्हाट दे आर ब्रिंगिंग. उसे पता लग गया कि वो लोग क्या लेकर आए थे. सो झूलन ने क्या किया? झूलन टोल्ड देम, नाउ क्लोज योर नोज़. अब तुम अपनी नोज़ बंद करे रखो. And now tell us what we are giving to you. So Jhumpa was confused. It is a bit bitter, a little salty and somewhat sour. अब क्या हुआ? उसकी नोज़ भी बंद है और उसकी आइज़ भी बंद है. अब उसके माउथ में जो चीज़ डाली वो टेस्ट करके बता रही थी. तो उसे कैसा लग रहा था? थोड़ा सा कड़वा लग रहा था, थोड़ा सा सॉल्टी लग रहा था, और थोड़ा सा उसे सार मीन्स खट्टा लग रहा था. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. अब उसने क्या बोला कि मुझे एक चम्मच और खिलाओ. झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, uncovered Jhumpa's eyes and said, here it is, eat. Jhumpa laughed. Yes, give me more. अब क्या हुआ? जैसे ही झुम्पा ने बोला कि मुझे एक चम्मच और खिलाओ, झूलन टुक अनदर स्पूनफुल, एक और चम्मच में भर कर लिया और जो वो करेला था वो उसके मुंह पे डाल दिया. अब now how she eats that bitter karela? Firstly, she is not able to eat that karela. Now she is eating. How is it possible? पहले क्या हो रहा था? वो देख भी रही थी और वो स्मेल भी कर रही थी. So with the eyes and with the smell means both of our senses, वो दोनों senses से पता लगा रही थी that is bitter, और bitter की वजह से she is not able to eat. लेकिन अब क्या हो रहा था? अब उसकी आइज़ भी बंद थी और उसकी नोज़ भी बंद थी. तो ना ही वो देख पा रही थी और ना ही वो स्मेल कर पा रही थी. तो उसे खाकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या खा रही है. सो शी ईट्स करेला 2 स्पून्स. इसीलिए उसने 2 स्पून्स करेला और खा लिया. अनकवर्ड झुम्पा आइज़, और फिर उसकी आंखों से वो पट्टी हटाई गई और उसे कहा गया कि तुम क्या खा रही थी?
करेला। सो झुम्पा हंसती है और क्या कहती है, यस गिव मी मोर। तो वो क्या कहती है कि अब मैं और करेला खा लूँगी, आप मुझे और करेला दे दो। नाउ दिस इज़ द स्टोरी। ये स्टोरी से आपको क्या पता चलता है कि हमारी जो मतलब सेंसेस होती हैं, वो सेंसेस हमें ये बताती हैं कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं और हमें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, किस में स्मेल आ रही है। ये सारी ही चीज़ें हमें किससे पता लगती हैं, विद द हेल्प ऑफ अ सुपर सेंसेस। नाउ लेट्स डिस्कस एंड राइट। First question. Julan's mouth started watering when she heard the word Imli. When does your mouth water? List 5 things do you like to eat and describe their taste. जैसे झूलन को क्या हो रहा था, जैसे ही उसके सामने इमली का नाम लिया, शी स्टार्टेड वाटरिंग, उसके मुंह में पानी आने लगा। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप अगर जिसका नाम सुनते हैं तो आपके मुंह से भी पानी आता है। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? वाई? वी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, ओनली वन टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी बोरिंग। हमें अलग अलग तरह के टेस्ट पसंद होते हैं, क्योंकि अगर आप रोज़ क्या है, सपोज़ अगर आपको जैसे स्टोरी में बताया, इफ़ यू विल ईट जैगरी एंड रोटी डेली, तो आप क्या हो जाओगे, वंस अ डे यू विल गेट बोर्ड, आप एक दिन बोर हो जाओगे। तो आपको हर दिन क्या चाहिए, डिफरेंट टेस्ट चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, Jhulan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? Yes, just a few drops of sour things are enough to make out the taste. जैसे कि झूलन ने क्या करा था, कुछ ड्रॉप्स लेमन की झुम्पा के मुंह में डाला था और उसने एकदम से बोल दिया था कि ये तो बहुत ही खट्टा क्या है, लेमन है। सो इन अ सेम वे, अगर आप क्या करते हो, कोई भी खट्टी चीज़ मुंह में डालते हो तो क्विकली यू विल टेल दैट दिस इज सार, ये क्या है, खट्टा है। थर्ड क्वेश्चन, इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू seeds of सौंफ, any seed, on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? How? Yes, we can recognize some food items by the smell also, like fennel. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके टेस्ट हमें क्या रहते हैं, हमेशा पता रहते हैं, ठीक है। सो व्हेन सपोज इफ़ यू आर ईटिंग अ सौंफ और अ फेनल, तो आप उसको जैसे ही मुंह पे डालोगे तो उसका टेस्ट आपको एकदम समझ में आ जाएगा दैट यू आर ईटिंग अ फेनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। झुम्पा ने फ्राइड फिश कैसे पता लगाया कि ये फ्राइड फिश है? विद द हेल्प ऑफ अ स्मेल, क्योंकि स्मेल जो होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है ये पता लगाने के लिए कि दैट व्हाट वी आर ईटिंग। ओके, नाउ कैन यू गेस द नेम्स ऑफ अ सर्टन थिंग ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? Yes, we can guess many things only by its smell, like fish, omelette, samosa, bhaji, pakodi, etc. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ स्मेल, मतलब मीन्स हम स्मेल करके, सूम करके उन चीज़ों का पता लगा लेते हैं कि हम क्या खा रहे हैं या किस चीज़ की स्मेल आ रही है। लाइक जैसे कि फ़िश की, ऑमलेट, समोसा, भाजी, पकौड़ी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम स्मेल करके पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि दवाई खाने से पहले आप अपनी नोज़ क्लोज कर लो? एंड वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? और अगर ऐसा बोला है तो क्यों बोला है? आवर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स अस
To get the complete taste of food, closing our nose will somewhat mask the bitter taste of the medicine. Like in the story, they both have played the game. आपने गेम देखा था. I told you in the story कि उन्होंने क्या करा था. पहले तो उसकी आइज़ क्लोज करी थी, तो with the help of a smell she get to know that what they are giving to her. But later on they close the nose as well. उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या करा था, उसकी नोज़ भी क्लोज कर दी थी. और ऐसा क्यों करा था? क्योंकि स्मेल इज़ ऑल्सो अवर सेंस. स्मेल भी एक सेंस होती है जिससे हम क्या करते हैं, स्मेल करके पता लगा लेते हैं दैट व्हाट दे आर गिविंग टू अस. हमें क्या दिया जा रहा है. विद द हेल्प ऑफ अ स्मेल वी गेट टू नो. सो इन अ सेम वे कभी कभी क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ बिटर लगती है और अगर हम अपनी नोज़ क्लोज कर लेते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो हमें नहीं आती. एंड विद दैट स्मेल, अगर वो स्मेल ही नहीं आएगी, सो वी विल ईट दैट मेडिसिन और समथिंग बिटर थिंग्स ईजिली. उसे हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं. नाउ close your eyes and tell. Now collect a few food items having different kind of taste. Play a game with friends like Jhumpa and Jhulan did your friend to taste the food and ask. Now what they are saying, the same Jhulan and Jhumpa played a game. How they have played a game? With close their eyes. In a same way you will also play a game with your friends. How means you can close the eyes of your friend and give them some food and ask them what she or he is eating. So first question arises, how did it taste? What was the item? आप क्या करोगे, पहले उसे कोई भी चीज़ दोगे और उससे पूछोगे कि उसका टेस्ट कैसा है और वो क्या है. On which part of the tongue could you get the most taste? In front, at the back, on the left or right side of the tongue? The second question arises कि आपको किस पार्ट में कौन सा टेस्ट आ रहा है. Which taste could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the picture given. Now see, in front सबसे पहले जो जीभ का पहला हिस्सा होता है उसमें आपको क्या लगता है, स्वीट लगता है. उसके बाद वाले हिस्से में आपको सॉल्टी लगता है. देन सार यानी कि खट्टा लगता है. और जीभ के लास्ट वाले हिस्से में आपको क्या लगता है, बिटर टेस्ट लगता है यानी कि कड़वा में लगता है. Next question. One at a time puts things to eat other parts of the mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? No, we do not get any taste on the other part of the mouth. What they are asking, वो पूछ रहे हैं वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट. आप एक टाइम पे कोई भी चीज़ अपने माउथ में डालिए एंड अदर पार्ट ऑफ द माउथ, और फिर उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द माउथ अंडर द टंग, उसे टंग में डालिए. ऑन द लिप्स ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ. डिड यू गेट एनी टेस्ट? क्या आपको कोई टेस्ट आएगा? नहीं. वी डू नॉट गेट एनी टेस्ट ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज़ a clean cloth to wipe the front part of your tongue to taste it is dry. Put some sugar and jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? वो क्या बोल रहे हैं, आपका जो फ्रंट पार्ट है टंग का, उसे आप क्या करो, वाइप कर लो और पोंछ लो, उसे ड्राई करके. नाउ पुट सम शुगर और जेगरी. ठीक है, क्या आपको कोई टेस्ट आएगा और आपको कैसा लगेगा? नो, वी कुड नॉट टेस्ट अ थिंग. हमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा. दैट इज बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा देयर. When the food mixes with our saliva, then only we get
then only we get its taste. क्या होता है, जब हमारे माउथ के अंदर, हमारे टंग में जब सलाइवा होता है, सलाइवा आपने देखा होगा, थूक होता है, ठीक है, जब सलाइवा हमारे मुंह में होता है एंड देन वी विल ईट समथिंग, और हम कुछ खाते हैं, तो दैट फूड विल मिक्स विद द सलाइवा, वो जो फूड है वो सलाइवा से मिक्स होता है, एंड देन वी गेट टू नो दैट दैट इज़ स्वीट, साल्टी, सार और बिटर. सलाइवा मिक्स होने के बाद हमें समझ में आता है दैट विच टेस्ट इट इज़, वो कौन सा टेस्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? Yes, these are taste bud. क्या होता है, जब अगर आप मिरर में अपनी टंग को देखिएगा, आपको उसमें स्मॉल स्मॉल बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे बम्स टाइप की दिखाई दे रहे होंगे, तो वो क्या होता है, दीज आर टेस्ट बर्ड. उन्हें टेस्ट बर्ड बोला जाता है. टेस्ट बर्ड क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स आर द सेंसरी organs that are found on your tongue and help us to experience different taste like sweet, salty, sour, bitter and savory. क्या होता है, टेस्ट बर्ड क्या होता है, हमारे वो छोटे छोटे जो बम्स होते हैं वो एक्चुअली सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमें पता लगाने में हेल्प करते हैं कि हम कौन सा टेस्ट ले रहे हैं. आप स्वीट ले रहे हो या सार ले रहे हो या सॉल्टी लेते हो या बिटर ले रहे हो, आप क्या चीज़ खा रहे हो उसे एक्सपीरियंस करने में, उस टेस्ट का पता लगाने में टेस्ट बर्ड्स हमारी मदद करते हैं. नेक्स्ट, टेल. If someone asks you to describe the taste of आंवला और cucumber, you might difficult to explain. अगर आपसे कोई पूछे कि आंवला और कुकुम्बर का टेस्ट कैसा होता है, तो आप थोड़ा सा, आपको वो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. वाई? बिकॉज आंवला इज़ लिटिल सार एंड स्वीट और कुकुम्बर इज़ लिटिल जूसी. Now next question, how would you describe the taste of these? आप इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, किन किन चीज़ों का, लाइक अनियन, टमाटो, सौंफ और गार्लिक. नाउ सी, टमाटो का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट एंड सार एंड जूसी, वो मीठा, थोड़ा खट्टा और जूसी होता है. अनियन कैसा होता है, पिगेंट. पंगेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. सौंफ कैसा होता है, स्वीट विथ नाइस स्मेल, मीठा और उसकी बहुत नाइस स्मेल होती है. गार्लिक वो कैसा होता है, बिटर विथ प्यूगेंट स्मेल, वो कैसा होता है, थोड़ा सा बिटर होता है और उसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, think of words that you know or make up your own words to describe the taste. ऐसी ही कुछ चीज़ों के नाम आप भी बता सकते हैं और उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, when Jhumpa tasted some of the things she said जैसे ही झुम्पा ने कुछ चीज़ें खाई उसे आवाज़ आने लगी. मीन्स वो कौन सी ऐसी चीज़ उसने खाई थी, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन. शी मे हैव ईटन अ चिली. उसने क्या खाई थी, चिली खाई थी. दैट्स वाई शी सेड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्टीज. आप भी कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जिनसे उनकी साउंड्स का पता लग सके. मीन्स आप जो खाते हैं उनकी अलग अलग साउंड्स होती हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन. आप क्या करो, यू विल ईट समथिंग और आपका फ्रेंड उसको क्या करेगा, उसके एक्सप्रेशन और साउंड बताएगा. लाइक जैसे यमी आप कब कहते हो, जब आप कोई भी स्वीट आइटम्स खाते हो, लाइक आइसक्रीम, जलेबी एक्सेट्रा. स्लम्बिंग चीज़ आप कब बोलते हो,
जब आप कोई भी जैसे जूसी चीज़ खाते हो, लाइक नूडल्स, पॉरेज, खीर, और ऐसे कब करते हो? जब आप कोई भी सार चीज़ें खाते हो, लाइक पिकल्स, जब आप कोई भी खट्टी चीज़ खाते हो. Now we have come to an end, and the next topic we will discuss in our next video. Till then, stay home and stay safe. Bye bye.